Good evening, everyone. And I start my topic, or should we wait for 2 minutes further? It's 6:08 already. Recalling the topic that we have covered already in the last class, elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity, percentage method, arc method, graphic method, demand forecasting, producer surplus, consumer surplus, and then statistical techniques,
that we have done already in last class when we started marking perfect combination. We already discussed shift in demand. My today's topic is monopoly. Today's topic is monopoly. My target is to complete monopoly and at least complete oligopoly portion. And at the same time, I put monopolistic a little on weight. And these are the numerical questions. So my target is to give little overview of this numerical questions that you find techniques and application of economics because one numerical question definitely come out of it. Okay. Let's start. You can search it on your book. Page number is given. Maybe it's near about page number 90, 91. Okay. My topic for today class is monopoly. Please reply. My screen is visible and my voice is audible with yes or no only. My voice is audible and my screen is visible. Now screen is visible. Right. Thank you very much for everyone for replying. Let's start our next topic. We are talking about monopoly, and you can refer your book page number. You can refer your book page number. I think 90 or 91. For book, it is page number 90 or 91.
Let's begin with monopoly. First thing, understandability of this word say that there are monopoly means single. Monopoly means single seller. There are large number of buyers. There are large number of buyers, but seller is one. Any one of you can give some example. For example, where there is a situation of monopoly, we observe a simple example is Indian Railway. Am I right? Right. Earlier it is Indian Railway. True. What are the causes of what are the causes of what are the causes of monopoly? Yes, Himanshu is good. IRCTC. What are the causes of monopoly? First cause, it may be natural monopoly. It may be due to huge investment, huge investment. At the same time, long gestation period. Long gestation period. Third one, patent right. And fourth one, maybe licensing policy. Any one of you can tell me what is the meaning of gestation period, long gestation period? Long gestation period means you can reply in chat box. Gestation period means when you invest some money, when you invest some money and you have to reap profit after a longer duration. Profits start coming after a longer duration. Yes, return of investment is longer duration. Exactly. So next we are moving what are the features of monopoly. Features of monopoly. First one, as we already discussed that mono means single, poly means seller. So first feature is there is a single seller in the market and there is no close substitute available of the product. No close substitute. There is no free entry and exit. Third feature, no free entry or exit. Interpretation is
due to patent right, licensing, or due to huge risk, huge investment. Nobody easily come up. Fourth one, price discrimination. Price discrimination. What do you mean by price discrimination? Charging different price from different customers. ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? Who gave this concept? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अभी हम डिस्कस करेंगे. Anyone? Anyone? The concept is given by ACP Group. We will discuss it within next 5 minutes. But first, we are talking about features of monopoly. That means the feature is monopoly is price maker. Monopoly is price maker. He is not price taker. He is price maker. Right? Am I right? Okay. Next one. What is objective? His objective is social welfare. Social welfare too. His objective is social welfare too. Okay. Now we will discuss this point too in detail. So ये point details पे लेके चलेंगे हम. ये वाला point detail में लेके चलेंगे. Seven point product. It may be same. It may be differentiated. It may be same. It may be differentiated. Right? When we discuss equilibrium of monopoly, when we have to discuss equilibrium of monopoly, तो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट फ्यू क्लासेस में बोला है कि परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक इनफैक्ट ये कौन से मॉडल है? ये तीन मॉडल डिटरमिनिस्टिक मॉडल है. डिटरमिनिस्टिक मॉडल है. व्हाट डू यू मीन बाय डिटरमिनिस्टिक मॉडल? दैट मीन हम तीन चीजों को डिटरमाइन करेंगे. प्राइस को डिटरमाइन करेंगे. रिप्लाई कीजिए साथ साथ. आउटपुट डिटरमिनेशन करेंगे
और प्रॉफिट डिटर्मिनेशन करें. Am I right? Please reply in chat box. When I say equilibrium of monopoly, that means I determine something. What should I determine? I should determine three things. Whenever the word arises, equilibrium of perfect competition, equilibrium of monopoly, equilibrium of monopolistic competition, that means you are deterministic model. तो कितने टाइप के मॉडल होते हैं? आई कैन रिपीट इट despite of discussion in very previous classes that there are two type of model. First model is deterministic model, second model is behavior model. So we come up when we say that equilibrium of monopoly can take place, it is situation 3 can arise, that is monopoly may earn profit, monopoly may earn no profit no loss, and third, monopoly may earn losses. Right? Am I right? So तीनों कंडीशन हमें डिस्कस करनी है. Right? Please type right or wrong. अभी तक जो पढ़ाया है समझ में आया है? Then I move forward. Okay. मैं रिपीट कर दूं. कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं? One is called deterministic model. One is called behavior model. मोनोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप डिटरमिनिस्टिक मॉडल का यूज करेंगे जहां पे आप प्राइस, क्वांटिटी, प्रॉफिट ये तीन चीजों को निकाल के बताएंगे. बिहेवियर मॉडल ओलिगोपोली में चलता है और यहाँ पे फर्म 1 का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू फर्म 2. अगर दो फर्म होती है तो हम उसको ड्यूपोली बोलते हैं. यहाँ पे हम कर्नॉट मॉडल पढ़ेंगे. कर्नॉट मॉडल, चैम्बरलिन मॉडल, यहाँ पे आप प्राइस की बात कम करोगे, फर्म 1 के प्राइस की बात कम करोगे, रादर देन उसके बिहेवियर की बात ज्यादा करोगे. बिहेवियर से ही पता चलेगा या तो प्राइस का या क्वांटिटी का. मेरी बात समझ में आई? मैं चलूं नेक्स्ट पॉइंट पे, बिकॉज अभी हम मोनोपोली कर रहे हैं. Should I move forward? Please reply yes. Forward चलें. Okay. So we are discussing situation first. Where we are discussing situation first? Monopoly. And what is the situation? The firm is earning profit. Before this, थोड़ी सी conceptual understanding होनी चाहिए. Before we move forward, थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. इस चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि AR कर्व क्या होता है. इट इज नथिंग एल्स बट द डिमांड कर्व एंड इसकी शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. AR कर्व. MR कर्व क्या होता है? इट इज मार्जिनल रेवेन्यू. इट इज मार्जिनल रेवेन्यू. AR कर्व MR कर्व के हाफ वे पे लाई करता है. राइट? दैट मीन अगर आपने स्केल लिया, AR कर्व अगर एक लीनियर कर्व है तो MR कर्व ये वाला गैप और ये वाला गैप हाफ हाफ होगा.
If it is 2 centimeter, it should be 2 centimeter. If it is 4, I redo it. I redo it. This gap and this gap, both are same. MR curve lies halfway of AR curve. सेकेंड लाइन में कह सकता हूं इसमें स्लोप ऑफ MR is 2 times स्लोप ऑफ AR. ये प्रूव करने को आया हुआ एक बार पेपर में, तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। प्रूविंग का काम अभी थोड़ी देर में करता हूं मैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो मैंने आपको AR कर्व बता दिया, MR कर्व बता दिया, तीसरा AC कर्व, it is U shape in nature. Fourth, MC curve, again it is U shape in nature. एक बातों को ध्यान में रखना है, when MC decreases, AC decreases, MC decreases at a faster rate compared to AC decreases. When MC increases, AC increases, this is the situation, then MC increases at faster rate. Third situation, minimum point of MC come first, MC cut at minimum point of AC. इन चीजों को ध्यान में रखना है आप। अगर ये बातें समझ में आ गई, then I can move forward. Please reply. Can I move forward? जब पहले मिनिमम पॉइंट MC का आया, दोबारा देखिएगा डायग्राम, दिस इज MC कर्व, दिस इज AC कर्व। पहले मिनिमम पॉइंट MC का आया, फिर मिनिमम पॉइंट AC का आया, पहले मिनिमम पॉइंट MC का आया, minimum point of MC come first, MC cut at the minimum point of AC. Now, next, I'm discussing equilibrium condition. What is equilibrium condition? Please, anyone can reply. Anyone can reply. What is equilibrium condition? There are two conditions, that MC equals to MR. Second, MC cut MR from below. I can write it MC cut MR when MC is falling. Anyone can reply कि मैं इसको कुछ और लिख सकता हूँ या नहीं? MC equals to MR. Anyone can reply कि कुछ और नाम हो सकता है या नहीं?
मीन्स स्लोप ऑफ, पता नहीं आप लोगों ने सुना भी हुआ या नहीं, स्लोप ऑफ TC is equals to slope of TR, right? Right? So ये बातें सारी तीनों डायग्राम में कॉमन होगी, इसलिए मैं सिचुएशन फर्स्ट कर रहा हूं। क्या आप मेरे साथ साथ डायग्राम बना रहे हैं? ऑल ऑफ यू कैन रिप्लाई, यू आर मेकिंग अ डायग्राम, तभी मैं स्लो चलूं, अदरवाइज फास्टली आई कैन मेक। ओके, फर्स्ट आपने क्या कर बनाया? AR कर्व। यहां पे स्टॉप करूं या वहां तक लेके जाऊं? नेगेटिव नहीं लेके जाना आपने, नेगेटिव नहीं लेके जाना, क्योंकि डिमांड कर्व है, नेगेटिव नहीं होगी, मैक्सिमम इसको टच कर सकता है। अगला कौन सा कर्व बनाना है हमने? प्लीज रिप्लाई। नेक्स्ट कर्व इज आफ्टर AR कर्व, नेक्स्ट इज MR कर्व। MR कर्व इसका हाफ वे में होना चाहिए, इस तरीके से बनाना। ये नहीं कि आपने ऐसे लाइन खींच दी, ये गलत होगा। ये भी नहीं कि ऐसे लाइन खींच दी, ये भी गलत होगा, राइट? अभी थोड़ी देर में प्रूव करूंगा ये हाफ ही क्यों होता है, लेकिन इस बात का ध्यान देना है, एग्जामिनर एक्सपर्ट है काफी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में होना चाहिए। दिस इज MR कर्व, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, राइट? एम आई राइट? प्लीज रिप्लाई। दिस इज AR। मैं पुराने वालों को रब अप कर रहा हूं। क्लियर? हम चले नेक्स्ट स्टेप पे। परमिशन ग्रांटेड टू मूव फॉरवर्ड। तो आपने AR कर्व बनाया, MR कर्व बनाया, नेक्स्ट इज MC कर्व। नेक्स्ट इज AC कर्व। Now, what is equilibrium condition? That equilibrium condition is MC equals to MR. First point. Where MC is equals to MR at this point. I am naming it E. At point E. Am I clear? My concept is clear so far to everyone? To everyone? Right. Thank you. Next. From this point, I draw a perpendicular on two curve. From point E, I am drawing perpendicular on MC curve. Sorry, I am drawing a perpendicular on AR curve and AC curve. I am drawing a perpendicular on AC curve as well as MC curve. Why? Why I am drawing perpendicular? Any one of you? Any one of you? Why I am drawing a perpendicular? ड्राइंग बना रहे हैं हम यहाँ पे कोई, या कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? मैंने आपको बोला दो चीजें डिटरमाइंड होगी, एक तो होगी प्राइस, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे AR पे। ये गलत लिखा गया, AC नहीं है AR है, आई एम सॉरी। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट E ऑन AC कर्व एंड AR कर्व, राइट? देन AR से डिटरमाइंड होगा प्राइस। प्राइस को अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास हो जाएगी टोटल रेवेन्यू। थर्ड,
AC पे परपेंडिकुलर इसलिए डिटरमाइन किया कि एवरेज कॉस्ट पता चलेगी, उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो TC होगा, 4 TR में से TC को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 0x, ये है आपकी क्वांटिटी, जहां AR पे कट आया ये पॉइंट A, OPAX ये आपकी है TR, टोटल रेवेन्यू, और कॉस्ट कितनी है B पॉइंट आपका। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो मैं चलूं आगे। न्यूमेरिकली अब आप खुद सॉल्व करेंगे, मैंने परफेक्ट कंपटीशन में ये ऑलरेडी सिखा दिया था आपको। दैट TR क्या आया, इट इज रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल, OPAX, what is TC, again it is rectangle, OP1BX, what is total profit, sometimes we denote by pi sign, it is OPAX minus OP1BX, which is equals to TP1AB। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं चलूं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लीज रिप्लाई। Should I move forward? Okay. Situation 2 I am discussing. Situation 2. What is situation 2? No profit, no loss. Again, AR, MR, MC, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OX इज द आउटपुट, ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OP इज द प्राइस, OX is output, E is the equilibrium point, right? अब देखिएगा AC कर्व, इसको जस्ट टच होता हुआ गया ऊपर से, what is my total revenue? It is OPBX. What is my total cost? Again OPBX. What is my total profit? Total profit, it is nil. When I say total profit is nil or no profit, no loss, that means I am talking about only normal profit. MCQ में आ सकता है ये क्वेश्चन। Am I allowed to move forward? Situation 2 understood. Please reply in chat box. Should I move forward or repeat the concept? Okay. Situation 3. Losses. I'm going back. अगर मेरा AC कर्व, अगर मेरा AC कर्व ऊपर से जाता, दिस इज AC, तो ये वाला जो एरिया आता ये मेरा लॉसेस का आता, ये होगा सिचुएशन 3। OP1C, तो आपकी टोटल रेवेन्यू क्या होती, OPBX, और टोटल कॉस्ट क्या होती, OP1CX, एंड लॉसेस कितने होते, PP1CB। क्लियर? प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर? और आई मेक द डायग्राम फॉर थर्ड सिचुएशन अगेन।
A fresh one. Okay. Now we are moving to next concept. What is next concept? Price discrimination. Price discrimination of 3 degree. Degree 1. This concept of price discrimination given by A.C. Tigu, and maybe in your book it is on page number 91. Degree 1, degree 2, degree 3. So I am discussing price discrimination of degree 1. In price discrimination of degree 1, consumer take maximum part, sorry, uh, degree 1, producer take maximum part, of consumer surplus. Consider situation 1. पहला कस्टमर आया, प्राइस चार्ज किया P1. सेकंड कस्टमर आया, प्राइस चार्ज किया P2. या ऐसे बोल सकते हैं, when you are selling quantity number 3, price is charged P3. When fourth quantity is sold, price is charged P4 and quantity sold is P4. अदरवाइज अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता? P E X O. This is normal circumstances. Normal circumstances mean I am talking about perfect competition. तो ये ऊपर का एरिया आपने पढ़ा था, इट इज कंज्यूमर सरप्लस. हियर हर कस्टमर से वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर रहा है या हर यूनिट पे वो मैक्सिमम चार्ज कर रहा है. तो कंज्यूमर सरप्लस का जो ये एरिया होता कंज्यूमर सरप्लस का, उसका मैक्सिमम पार्ट किसके पास जा रहा है? उसका मैक्सिमम पार्ट प्रोड्यूसर के पास जा रहा है. इफ यू आस्क मी, सर प्रिपेयर अ डायग्राम अगेन एंड बताओ कि कितना कंज्यूमर सरप्लस चला गया. तो P1 पे P4 4 क्वांटिटी होती, ये वाला एरिया A P4E कंज्यूमर सरप्लस होता. जब उसने 1 यूनिट बेची तो इतना एरिया कंज्यूमर सरप्लस का वो ले गया. कौन ले गया? प्रोड्यूसर. जब उसने P2 बेचा तो वो गेन ये एरिया ले गया. लेकिन अभी ये कंज्यूमर सरप्लस बचा हुआ है. तो क्वेश्चन, कैन ही टेक ऑल कंज्यूमर सरप्लस और पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? आंसर, पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. But maximum part is taken away by producer and a lesser part is remained with consumer. It is price discrimination of degree 1. The diagram is not given in your books, but I think so you understood the diagram. Am I make my sense clear? Next point I am moving. Price discrimination of degree 2. Price discrimination of degree 2. Here, quantity sold at, here the quantity sold in a lots at price P1, all the lot of OX1 is given. Again, producer taking away consumer surplus, but not maximum, only a part. But is the part? This part is taken away.
अगर आप पिछले 4 रेक्टेंगल को और इस अकेले रेक्टेंगल को चेक करेंगे तो ये सब रेक्टेंगल्स का सम इस रेक्टेंगल के सम से ज्यादा होगा। परमिशन ग्रांटेड टू मूव फॉरवर्ड डिग्री 3। परमिशन ग्रांटेड टू मूव फॉरवर्ड डिग्री 3। डिग्री 3 के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। आपकी मॉड्यूल में एक एक लाइन दी हुई है, बट आई एम मेकिंग डायग्राम एंड ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर। Side by side, prepare a diagram, mark it 1, mark it 2, and total. Right? हम क्या कर रहे हैं? Price discrimination of degree third. Price discrimination of degree third. Illustration 43 देखिएगा बुक्स में, अगर आप बुक लेके बैठे हुए हैं। Illustration 43. देखा आपने? Illustration 43. C is equals to 50 plus 40 x1 plus x2. P is equals to 100 minus 2 x. P1 equals to 80 minus 2.5 x1. P2 equals to 180 minus 10 x2. ये पेज नंबर 125 पे मिलेगा शायद, आपने देखा? मैंने सही लिखी है फिगर्स। Only 1 or 2 students reply. I think my teaching methodology, they are not liking it. Other student not liking my teaching methodology. That's why the reply is not coming. I need reply from you. Don't grade me whether I am good or I am poor. I need replies from your side. Whenever I ask, I need reply. Yes, okay, you are understanding it. Unwanted sounds are not required like in the first class. Okay, हम ये illustration करेंगे at later stage. But to start with that understanding, let सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये क्वेश्चन हमने करने के लिए किन किन चीजों को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं होगा तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स बिगिन विद। नाउ मैं कितनी असम्पशन लेके चल रहा हूँ? देयर आर हाउ मेनी मार्केट? बताइए कितनी मार्केट्स लेके चल रहे हैं हम? हाउ मेनी मार्केट? 2 मार्केट लेके चल रहे हैं। गुड। और हम ये बात कर रहे हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन है कि there is a condition of price discrimination that elasticity of demand in market 1 and elasticity of market 2 both are different. Both are different. For sake of simplicity, मैं मान रहा हूं कि ED1 inelastic है और ED2 elastic है। Are you getting my sense? All of you understood कि मैं क्या बोल रहा हूं? When I am saying ED1 is elastic, that means इसका AR कर्व कैसा बनेगा? ऐसा। और इसका AR कर्व बनेगा ऐसा। AR कर्व डिमांड कर्व भी होता है, राइट? ओके, so consider first this is demand curve D1 and this is demand curve D2.
Clear? Okay. Next one, I'm preparing MR curve. Just consider this is my MR2, this is my MR1. ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? स्टेप बाय साइड में. Now, what is my combined? What is my combined MR? तो मैंने MR का सम किया. This is my combined MR. Sigma MR, which is nothing else but MR1 plus MR2. सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मोनोपोली की जो कॉस्ट दी होगी वो सिंगल प्लांट की दी होगी. MC जो होगा वो 1 होगा. इट इज नॉट MC1 प्लस MC2. ऐसा नहीं होगा. वो एक प्लांट मार्केट 1 के लिए बनाएगा, एक प्लांट मार्केट 2 के लिए बनाएगा. वो एक प्लांट लगाएगा, एक प्लांट पे प्रोडक्शन करेगा और 2 मार्केट में सप्लाई करेगा. ये बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? बस मेरा ये कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है. देन वी मूव टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन. देयर इज अ क्वेश्चन व्हाई सर. अच्छा देखिएगा, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूं ना. कॉस्टिंग कहाँ अराइज होगी? घर पे. एक कुछ बच्चे बैठे हुए हैं इंस्टीट्यूट पे, एक कुछ बच्चे कहीं और बैठे हुए हैं. तो रिवेन्यू 2 जगह से होगी और कॉस्टिंग कहां से आएगी? एक जगह से. गॉट इट? कंसेप्ट इज क्लियर? ओके. नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन? दैट MR इक्वल्स टू MC. MR यहां पे है कहीं, MC ये रहा. तो यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये रहा MR इक्वल्स टू MC. ये रहा MR इक्वल्स टू MC. अब ऊपर परपेंडिकुलर लेके जाते हैं नीचे. नीचे आउटपुट डिटरमाइन करेंगे, ऊपर प्राइस. दोबारा कह रहा हूं मैं, MC इक्वल्स टू MR एट दिस पॉइंट E1 एंड E2. ऊपर का परपेंडिकुलर प्राइस देगा, नीचे का परपेंडिकुलर आउटपुट देगा. ये बात नोट करने वाली है. डायग्राम के साथ साथ अगर आपने बॉक्स में लिखना है तो लिख लीजिए. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मार्केट 1 मार्केट 2. मार्केट 1 मार्केट 2. ये जो लिखवा रहा हूं ये इलस्ट्रेशन 42 में पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा. ईडी, इन इलास्टिक. इलास्टिक लिख कैसे सकते हैं? E of 1 is less than E of 2. तो प्राइस क्या आया? मार्केट 1 का P1 हाई था, P2 लो था, P1 is greater than P2. फिर बात करते हैं क्वांटिटी की. फिर बात करते हैं क्वांटिटी की. क्वांटिटी 1 या OX1, क्वांटिटी 2 या OX2. देखिए क्या थी डायग्राम में, देख के बताइए. ये लेस थी, ये हाई थी. उल्टा हो गया है. OX1 is lesser than OX2. राइट? समझ में आया? All of you understood it? All of you understood?
कैन वी स्टार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस या पूरा बेसिक से चलें पहले, या पहले ये करें? व्हाट यू सजेस्ट, यू गाइस हैव टू सजेस्ट समथिंग। ये हम पहले इलस्ट्रेशन 43 देखें। ये टेबल प्रूव करके दिखाऊं? ओके, नाउ सो परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर बेस्ड मैं इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा, 42 को जरा थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूं। फर्स्ट, अभी अभी जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया है डिग्री 3 का, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं। यस, इलस्ट्रेशन 43 ही स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। एज द डिमांड इज कमिंग, अभी अभी जो कराया है उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया। जरा क्वेश्चन को रीड करके बताइए कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था C इज इक्वल टू 50 + 40x, और अभी अभी हमने ऊपर किया था कि मार्केट का OX ये टोटल मार्केट है, और ये थी मार्केट 1 प्लस मार्केट 2 इक्वल्स टू OX1 प्लस OX2। मतलब ये जो टोटल आउटपुट हुआ था, ये जो टोटल आउटपुट हुआ था, ये वाला और ये वाला, ये मार्केट 1 का था, राइट? OX1 प्लस OX2, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा OX इक्वल्स टू OX। यही अभी प्रूव करके दिखा रहा हूं इलस्ट्रेशन 43 में। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। राइट, सो सबसे पहले मेरे को बताइएगा प्रॉफिट। आई यूज टू डिनोट प्रॉफिट बाय पाई विच इज इक्वल्स टू R - C। एम आई राइट? ये क्लियर है? और व्हाट इज योर रेवेन्यू? इट इज रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट 1 फ्रॉम मार्केट 2, and revenue 1 is equals to P1 into X1, and revenue 2 is equals to P2 X2. If it is clear, then I move forward. Okay, what is R1? Could I write R1 is equals to, मैंने P1 को मल्टीप्लाई किया तो 80x1 minus 2.5x1 the square, and P2 को किया 180x2 minus 10x2 the square. Am I right? Please reply that I have MR, sorry, R1, R2,
R1 equals to, okay, I can repeat it, no issue. R1 is P1 X1 and R1 की वैल्यू क्या दी हुई है? R1 की वैल्यू क्या दी हुई है? R1 equals to P1 X1 और P1 की वैल्यू है 80 minus 2.5 X1 into X1 likely P2 X2 and P2 is equals to 180 minus 10 X2 into X2. So R1 equals to 80 X1 minus 2.5 X1 the square and R2 is equals to 180 X2 minus 10 X2 the square. Clear? Everyone, please you can reply everyone. Is it okay? Thank you. At least reply from 2-3%. Now question, am I interested in R1, R2 or my interest area is MR1, MR2? MR, exactly. Because what is the equilibrium condition? That MR equals to MR1 equals to MR2 is equals to MC. It is equilibrium condition. कहीं किया ये? अभी दिखा देता हूँ डायग्राम में आपको. देखिएगा डायग्राम. गोइंग बैक टू माय डायग्राम. ये रहा. ये आपने निकाला था MC. ये जो पॉइंट था ये था MC इक्वल्स टू MR2. ये जो पॉइंट था ये था MC इज इक्वल्स टू MR1. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी? ये देख लीजिए. MR1 equals to MR2 equals to MR1 equals to MR2 equals MC. तो मैं उसी पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ. R1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X1 और R2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X2 is MR. What is MR? Change in total revenue due to change in quantity sold. डेरिवेटिव आता है सबको? होप सो आता होगा. होप सो आता होगा. नहीं आता होगा तो अब हम डेरिवेटिव के बेसिक्स को ही स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के बाद. जिसको नहीं आता प्लीज राइट डाउन. सर बेसिक समझाने हैं डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के. जिसको नहीं आता, दोस पर्सन हु डोंट नो प्लीज राइट डाउन. तभी डेरिवेटिव के बेसिक्स फॉर्मूले में आपको समझाऊंगा आने वाली फ्यू क्लासेस में. या कोशिश करेंगे आज फॉर्मूले की लिस्ट दे दे. तो इसका डेरिवेटिव करके मेरे पास आया सिर्फ 80 और इसका डेरिवेटिव करके मेरे पास आया -5x1. ये मेरे पास इक्वेशन 1 बनी. बेटे अब फर्स्ट ये क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को हम छेड़ चुके हैं. अभी ये मान लीजिएगा ये डेरिवेटिव करके ये आ गया है. कैसे आया ये समझा दूंगा. नो इश्यू. राइट. सो MR2 is equals to 180 because derivative of x2 is 1, derivative of x1 is 1 and x1 square is 2x, 2x1 into में 2.5. इसी तरह ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बना 20x2. अभी ये मान लीजिए ये इक्वेशंस आ गई हैं. क्या मैं चलूं नेक्स्ट पॉइंट पे? अगर ये इक्वेशंस आ गई हैं तो मेरे पास इक्वेशंस क्या क्या बची हैं? मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, MR1 की और MR2 की. नेक्स्ट निकालते हैं.
C था हमारा 50 प्लस 40x, और x आपको पता ही है इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अगर आप सीधा MC निकाल देंगे, मार्जिनल कॉस्ट, वो आएगी 50। अगर आपका मन है सर मैं इसकी और डिटेलिंग करना चाहता हूं, तो पहले C लिखिएगा 50 प्लस 40x1 प्लस 40x2, अगेन MC1 आएगी जिसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आप डिटेलिंग करना चाह रहे हैं तो निकालिएगा। डायरेक्टली हम MC निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएट C with respect to x, which is work out to be 50, which is work out to be 50. Now what is equilibrium condition? That MC is equals to MR1 and MC is equals to MR2. So 50 is equals to what is MR1? 80 minus 5x1. और सेकेंड मार्केट के लिए 50 is equals to 180 minus 20x2. अगर ये सेंस क्लियर हुई तो आगे चलूं मैं। -30 is equals to minus 5x1. I'm sorry. I made a mistake. Please allow me to correct. If we differentiate derivative of 50 is 0, derivative of 50 is 0 plus derivative of x is 1, it is 40. Let me to correct. I am extremely sorry. I overviewed and I am apologies for my mistake. So please allow me to correct. This is equals to 40 and this is equals to 40. So the value of MC is 40 equals to 80 minus likely. Value of MC is 40. Right. So it is minus 40 and this is minus 140 equals to minus 20x2. Am I right? Right. Thank you, Ankit, for making me correct. So x1 is equals to 8. X2 is equals to how much? It will become 7. Am I right? Am I right? Next, can you tell me P1 value and P2 value? Do you remember P1 is equals to 80 minus 2.5 x1 and P2 is equals to 180 minus 10 x2. Putting up the value 80 minus 2.5 into 8, 180 minus 10 into 7. P2 become 110. P1 is 2.5 into this is 20. 80 minus 20, it becomes 60. Am I right up to here?
Please reply. Am I make my sense clear? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. अभी क्वेश्चन में इलास्टिसिटी और डिमांड भी निकालना बाकी है. E1 and E2. What is E1 formula? dx1 by dp1 into में p1 x1. Am I right? Change in quantity of good 2 divided by change in price of P2 into P2 by X2. Now, if you look at above, if I differentiate P1 with respect to X1, this derivative of 80 is 0 as it is constant minus 2.5 into 1, likely dp2 by dx2, differentiating price with respect to quantity, it will become minus 10. Because derivative of 180 is 0 and derivative of x2 is 1. So, if I make this reciprocal, it is minus 1 by 2.5 and this is dx2 by dp2 is equals to minus 10. But my interest area is ED1. ED1 is this, जो अभी अभी हमने निकाला, into P1, P1 की वैल्यू 60 निकाली, into X1, X1 की वैल्यू हमने निकाली थी आई थिंक 8. इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. Likely E2 is equals to dx2 by dp2, this 1 over into P2 by x2. E2 is equals to minus 1 by 10 into P2 value is 110 divided by X2 value is 7. Can you give up me this answer please? E1 and E2 value. This is 20. E1 is work out minus 3. And this one work out 1.57. Am I right? Am I right? For simplicity, we ignore minus sign. Why we ignore minus sign? Because we know the relationship between price and quantity is negative. Am I right? Please. Okay, I'm going back to my table. I prepared a table. Yes, elastic, inelastic. आंसर बताते हैं जरा हम क्या क्या है. ये आया था 3. ये आया था 1.57. प्राइस था यहाँ पे 7, यहाँ था 8. क्वांटिटी कितनी आई थी? 60 और 110. 110 और 60. ये बात समझ में आ रही है? प्लीज रिप्लाई. पूरा टेबल वेरीफाई हो रहा है? इस टेबल को फिट करना, दिस टेबल फिट करना इलस्ट्रेशन 43 पे.
आ रही है बात समझ में? All of you, please reply. Can I move forward? All of you, please reply. Can I move forward? So let's begin with. Now in future, I will not discuss illustration 43, but some student will make a request. If they will make a request, then only we can come to illustration 43 again. As we are moving to basics formula, we are making with some basic formula. A student who not know anything about differentiation, and then we talk about integration. Differentiation के लिए पहले देखते हैं, if my y function is x power n, what is dy by dx? Is power down, power less. जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता प्लीज रिप्लाई. मैं उनके नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ सो दैट आई कैन गिव मोर फोकस टू देम. सर डिफरेंशिएशन का थोड़ा बेसिक बताता है. फर्स्ट वन, प्लीज रिप्लाई. 1-2 स्टूडेंट होंगे देन आई कैन इग्नोर इट एंड सेपरेट. वन एक फाइल दे दी जाएगी, उनसे वो बच्चे सीख सकते हैं. ओके, 2 रिप्लाई कम, शीतल एंड प्रियंका. हाउ मेनी चेतन and Sriman? Is it from 10 to 20% of student की रेंज चाहिए? Otherwise, exactly. Please, you have to reply. If you don't know differentiation, then we go basic formula. If you know, then we can go with the advanced topic because there are 50 illustration here about. Please reply. Only 4 replies come so far. Okay. Okay. Let's begin with differentiation. What is the meaning of differentiation? First, what is meaning of differentiation? If we want to check what is the impact of change, impact of change. If we want to make impact of change, we use differentiation. That is, differentiation is used when one variable is changes due to other variable. When I am writing dy by dx, तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि वेरिएबल y में कितना चेंज आया, हाउ मच चेंज ड्यू टू, डिनोमिनेटर में लिखा वेरी इन वैल्यू ऑफ x. सो dy by dx नो, नीचे क्या लिया आपने cos. व्हाट इज द cos वेरिएबल? चेंज इन x. और ऊपर क्या लिया इफेक्ट वेरिएबल? चेंज इन y. x में चेंज होने से y में कितना चेंज आया? रिमेंबर करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, dx1 डिवाइडेड बाय dp1 ये लेते थे आप. तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया? ड्यू टू चेंज इन प्राइस. That's why we are using differentiation. So
डिफरेंशिएशन के काफी हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं, राइट, जो मैं शॉर्ट एब्रीविएशन में लिखवा रहा हूं, ये तो आपने जरूर याद करने हैं। LAE, इसको जरूर याद करना है। L का मतलब है लॉगरिथम्स, A का मतलब है अलजेब्रा, सो इट इज algebraic functions, लॉगरिथम फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ज्यादा नहीं है आपके करिकुलम में, EX AX है, अलजेब्रा आपके में बहुत ज्यादा है, और लॉगरिथम फंक्शन सिर्फ log x है। लॉगरिथम फंक्शन सिर्फ log x है। तो हम अलजेब्रा के फॉर्मूले और लॉगरिथम के फॉर्मूले, अभी फॉर्मूले को रीड आउट कर रहे हैं, अभी के अभी इन्हें सो आई एम प्रिपेयरिंग अ लिस्ट, you can write if you are noting down side by side. So list of differentiation formulas. First is y is equals to x power n. What is change in y due to change in x? Write down power less rule. For example, if y is equals to x power 5, then I write अगर x में एक यूनिट का चेंज हुआ तो y में कितना चेंज आएगा? पावर डाउन, 5 को मैं नीचे ले गया आगे, और पावर लेस, 5 माइनस 1 इज 4। दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? ये फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करके ही आया है। प्लीज रिप्लाई यस और नो। दिस इज क्लियर? थर्ड लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू 4x की पावर 3, y इक्वल्स टू 4x की पावर 3, देन dy by dx इज इक्वल्स टू 4, तो आपका था ही कॉमन, 3x square, it will become 12x square. हमने x क्यूबिक का डेरिवेटिव किया, x क्यूबिक का डेरिवेटिव इज 3x square. Is it okay? Permission is granted to move forward. Okay, thank you. Now, fourth formula I am writing, y is equals to constant. What is dy by dx? dy by dx is 0. Why? यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट है, यहाँ पे x तो है ही नहीं, यहाँ पे x तो है ही नहीं, और जब x नहीं है तो y में चेंज कितना होगा ड्यू टू चेंज इन x? नथिंग, 0। लेकिन जो बच्चे ज्यादा माइंड लगाना चाहते हैं, सर हमें तो बहुत अच्छा मैथ्स आता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाय dx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, y इक्वल्स टू k इंटू में x की पावर 0, बिकॉज अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 है, और 1 मीन एनीथिंग नंबर पावर 0 इज 1। तो dy बाय dx क्या होता, k 0x की पावर 0 माइनस 1 1 ऑफ माइनस 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई मेरे को 0 ही देगा। ये बात समझ में आई? लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, से y इक्वल्स टू सिर्फ 10 है, तो dy बाय dx क्या होगा बताइए? डेरिवेटिव होगा 0। क्लियर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, now look at sixth formula, y is equals to 1 by x, y is equals to 1 by x, what is dy by dx? पहले इसको दोबारा देखते हैं,
Can I write x power minus 1? Can I write x power minus 1? Yes or no? Seema, you write yes or no. If you write why, I get confused. You are asking me why. Otherwise, okay. If you, okay. Now, just consider dy by dx. x power n का क्या होता था? n x power n minus 1. तो मैं यही कर रहा हूं. पावर आगे ले गया -1 इंटू में x -1 n n-1 n की वैल्यू क्या है? -1. तो क्या बन जाएगा? -1 x n-1. It become -1 x minus 2, which is equals to -1 by x power 2. So I am writing dy by dx equals to -1 by x square. Clear? This one clear? Okay, I repeat it. No issue. I am repeating sixth. What I am saying, if in the question it is given 1 by x, could I rewrite it as, ये पेपर में आया, ये मैं अपने पास से लिख सकता हूं. अब dy by dx देखिएगा क्या होगा. -1 x -1 -1. -1 become x minus 2. It will become -1 divided by x square. Done. 7 देखिएगा. y equals to 1 by x power 2. कोई आंसर बताएगा इसका? मैं y को लिख सकता हूं x power -2. Then it is -2x power -2 -1. That is -2 divided by x power 3. Am I right? Am I right? ये समझ में आया x power 2 का dy by dx. ओके, अब जरा देखिएगा 8. y equals to 1 by x power 10. I am writing dy by dx -10 by x 11. ये बात समझ में आई? जो भी यहाँ पे पावर में हो वो ऊपर लिख दीजिए माइनस साइन के साथ, और एक पावर को एड अप करके लिख दीजिए. आई बात समझ में? यानी कि y equals to 1 by x power n, that mean dy by dx is equals to minus n divided by x n plus 1. Clear? This one clear? Am I allowed to move forward? Thank you very much. अभी तक जो हमने पढ़ा ऊपर वो पढ़ा ए को. मैंने बोला एल ई ई में मैंने आपको ए पढ़ा दिया है. अब मैं चल रहा हूँ लॉग पे. y equals to log x, that is 10. What is dy by dx? It is 1 by, it is 1 by x. It is 1 by x. Clear? Eleven. Y equals
Seema, you are asking me why or you are asking me yes? I'm much confused with your replies. If you want to say yes, please write yes. If you want to say why, write WHY. I'm confused with why. Why I don't understand what you are willing to say. Now, if y equals to e power x, this is what function? ये function था logarithm और ये function है अगला मेरे पास exponential. एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा? e पावर x का e पावर x log e होता है और log e की वैल्यू 1 होती है। That's why we write dy by dx is equals to ex. If y equals to ex. In case y equals to a power x, we write dy by dx is equals to a power x log a, because log a की वैल्यू 1 नहीं होती। ये 11 फॉर्मूले आपके पास याद होने चाहिए, पॉकेट में होने चाहिए। देन यू आर क्वाइट इन अ सिचुएशन कि आप इसको सही से समझ सकेंगे। अगर ये समझ में आ चुके हैं तब हम इनको आगे लेके चलते हैं। कैन आई डू न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन? एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज रिप्लाई कीजिए। मैंने एक अपने पास से क्वेश्चन लिया है, एंड दोज हु आर एक्सेलेंट इन मैथ्स, x power 10 plus 10 power x plus 10 power 10 plus e power x plus log x, इसका dy by dx बताइए क्या है? इसका बताइए पहले क्या है? 10x power 9, करेक्ट और नॉट? प्लस 10 पावर x log 10, कैसे? अभी अभी देखा, 12th फॉर्मूला। a power x is a power x log 10 plus 10 power 10, it is a constant, derivative of constant is 0. ex, derivative of ex is ex log e, as the value of log e is 1, as the value of log e is 1, so we simply write ex plus log x 1 by x. Is it clear? Is it clear? Please reply. Okay, let's move forward. अभी तक जो हमने देखा वो डिफरेंशिएशन में प्लस का साइन था, अगर माइनस आता तो यहाँ माइनस साइन आ जाता, नथिंग एल्स, और ज्यादा चेंज नहीं होता। यानी कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैथ्स के बेसिक चीजें हमने पढ़ी है। मैथ्स की बेसिक चीजें हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो प्लस माइनस में तो हम सिंपल ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके आए हैं, प्लस का साइन होगा तो प्लस, और अगर माइनस का साइन है तो माइनस। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ओके और नॉट? ओके, दैट मीन नेक्स्ट आई एम मूविंग टू y is equals to ex into में x पावर 5। अब क्या हो रहा है?
दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम्म, हाँ जी। हेलो। अब क्या हो रहा है, दो फंक्शन क्या हो रहा है बताइए। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एम आई राइट। तो यहाँ पे हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। अब मैं आपको प्रोडक्ट रूल सिखा रहा हूँ। इसके बाद लास्ट रूल है क्वोशिएंट रूल, तो डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी और हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्ट रूल, अगर y इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड फंक्शन हो तो हम डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसी तरीके से y अगर ex इनटू में x पावर 5 है तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, dy बाय dx कैसे आएगा। ex को पहले मैंने ऐसे ही लिखा, डेरिवेटिव किया किसका, x पावर 5 का, फिर x पावर 5 को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव किया e पावर x का। dy बाय dx का मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, ex 5x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, ex एज इट इज, बिकॉज ex का डेरिवेटिव ex हो सकता है। तो ex मैंने कॉमन लिया, पहले मैं इसको लिखता हूँ x पावर 5 प्लस 5x पावर 4, इसको बाद में लिखा। ये आपका आंसर है। ये कब अप्लाई करना है, प्रोडक्ट के केस में, प्रोडक्ट रूल का आंसर है ये। क्लियर हुआ, प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर। कैन आई मूव टू नेक्स्ट वन। मेरे को प्राइवेट चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है, सर अगर तीन फंक्शन होते, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन, तो डीवाई बाय डीएक्स कैसे करते। सिंपल, एक दो को मत छेड़ो, तीन को छेड़ो, एक एक करके करना है। पहले इन दोनों को कांस्टेंट रख दिया, थर्ड का डेरिवेटिव, फर्स्ट थर्ड को नहीं छेड़ा, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड को नहीं छेड़ा, फर्स्ट का डेरिवेटिव। सर इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दो। लॉग एक्स, एक्स की पावर 10 ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, पहले और दूसरे को नहीं छेड़ा, लॉग एक्स, एक्स पावर 10 सेम रहने दिया, ई एक्स का डेरिवेटिव का आंसर ई एक्स होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड को नहीं छेड़ रहा, log x को नहीं छेड़ा, ex को नहीं छेड़ा, इसका डेरिवेटिव होगा 10x पावर 9 प्लस, अब सेकंड और थर्ड को नहीं छेड़ा, x पावर 10 e पावर x, इसको नहीं छेड़ा मैंने, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। अगर आप इसको सही तरीके से ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 10x पावर 9 ex log x प्लस एक्स पावर 9 एक्स, क्योंकि ये एक पावर कम कर देगा। परमिशन इज ग्रांटेड टू मूव फॉरवर्ड।
Is it okay to everyone? Please reply. Okay, so let's begin with another topic. Give me 1 minute, please. Okay, let's start with basic understanding of some economics word and application of derivative in economics. Now, what is understanding of some economics term? First one is cost. When we talk about total cost, we have two parts. One is total variable cost, one is total fixed cost. Is it okay? ये तो मैं basic understanding of topic करवा रहा हूँ. You can search it on page number 99. On page number 99. मेरे से यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है. मैंने आपको प्रोडक्ट रूल करवा दिया, क्वेश्चन रूल नहीं करवाया. डिवीजन रूल, राइट? तो व्हाट वी कैन डू, मैं अब टॉपिक जो नया स्टार्ट कर चुका हूँ इसी के अंदर क्वेश्चन रूल भी करवा दूंगा. मेरा पेंडिंग क्या रह गया अभी? डिवीजन रूल. वी कैन कॉल इट एट क्वेश्चन रूल. तो मैं अभी क्वेश्चन रूल इसी के अंदर करवा दूंगा, प्लीज. सो माय टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? Total cost is equals to total variable cost and total fixed cost. ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये लीनियर है टीवीसी तो ये होगा AX. ये कांस्टेंट है तो हम इसको हमेशा K लिख के चलेंगे, राइट? बिकॉज टीवीसी क्या होती है? विद चेंजेस विद आउटपुट. चेंजेस विद आउटपुट. आउटपुट में चेंजेस होने के लिए पहला अगर टीवीसी आपने लिया लीनियर तो हम इसको लिखेंगे AX. अगर आपने लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिखेंगे हम AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, या लिखेंगे AX स्क्वायर प्लस C. आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी लिखना चाहें, राइट? तो अगर लीनियर है तो हम लिखेंगे TC इज इक्वल टू AX, और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो TC वी कैन राइट AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, राइट? प्लस फिक्स कॉस्ट को हम K से डिनोट कर रहे हैं. लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी आपके साथ वेरिएबल x नहीं आता आप उसको फिक्स कंपोनेंट ले लेते हैं. तो ये कहलाएगी आपकी टीबीसी और ये आपका कहलाएगा टीएफसी, विच इज इक्वल टू टीसी. एम आई मेक माई सेंस क्लियर? परमिशन ग्रांटेड टू मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट को x से डिवाइड करते हैं. एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट को x से डिवाइड करते हैं.
Right. Scroll up. Permission granted for next one. AC is equals to AVC plus AFC. So TVC divided by X plus TFC divided by X is AC. Right? Permission is granted to move forward. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो आप टीसी डिवाइडेड बाय एक्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज एमसी. एमसी फुल फॉर्म इज मार्जिनल कॉस्ट. Marginal cost, what is the meaning? Change in total cost or due to change in an additional unit of क्या, बताइए. यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ इनपुट और आउटपुट. इसमें से एक आएगा. यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई एक आएगा, टीवीसी या टीएफसी. बताइए, आप बताइए. सबसे रिप्लाई आने देते हैं. अगर सारे रिप्लाई दे रहे हैं तो ठीक है. Institute is making good expense and let the student aware. Yes. अंकित सही. अंकित रीजन दो why. Because TFC क्या रहता है हमेशा, TFC हमेशा फिक्स रहता है. नामी है राइट. तो चेंज इन या तो टोटल कॉस्ट या टीवीसी ड्यू टू चेंज इन एन एडिशनल यूनिट ऑफ. बताइए क्या. इनपुट और आउटपुट. इनपुट नहीं, आउटपुट. गुड. क्यों? रीजन. बिकॉज इंस्टीट्यूट रीजन भी तो मांगता है. इंस्टीट्यूट हमारा रीजन मांगता है. रीजन गलत है तो मजा नहीं आता. क्यों इनपुट क्यों नहीं? मैं बताऊं? मैं बताऊं या होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे देता हूं. बच्चे कह रहे हैं सर होमवर्क दो. मेरा मन था बताने का, दिल था मेरा मैं बता डालूं, लेकिन दो चार बच्चों ने बोला कि नहीं सर होमवर्क दो. तो नेक्स्ट क्लास में हम आते साथ इसको डिस्कस करेंगे कि इनपुट क्यों नहीं. थोड़ा सा याद करना. मैंने टाई बताया था एज वेल एज इकोनॉमिक एफिशिएंसी बताया था. श्रीमन मेरे पास होमवर्क की भी रिक्वेस्ट आई है प्लीज. तो इट्स गुड रिक्वेस्ट कि मैं होमवर्क दूं थोड़ा सा, है ना. अदरवाइज सब कुछ पक्की पकाई खिचड़ी मिल रही है. ओके. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन टूल. जो वहां का पीछे का बचा था मेरा, मैं उसको कर रहा हूं. इफ y इक्वल्स टू n बाई डी. क्वेश्चन टूल का मतलब है न्यूमरेटर में एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और दोनों का डेरिवेटिव कर रहे हैं. देन dy by dx is equals to denominator square, denominator as it is derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator. ये थोड़ा सा आपको लर्न करना है. अगर लर्निंग नहीं कर सकते तो मेरे पास वे आउट है. ये फॉर्मूला भी कैसे बना.
अगर आप लर्न कर लोगे तो आसानी हो जाएगी, लर्निंग नहीं करोगे तो फॉर्मूला कैसे बनाइए ना सिखा दूंगा। मैं क्या करूं, किस चीज के लिए छोड़ूं इसको, लर्निंग के लिए या डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला? दोनों। अच्छा, सबसे पहले ये बात ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी चीज का स्लोप, एनी कर्व स्लोप is equals to first derivative of that curve। ये मैंने क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। सपोज कीजिए मेरे से पूछा है एम ए सी, दैट मीन पहले तो मैं निकालूंगा ए सी, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, तो ये कहलाएगा मेरे पास एम ए सी। एम का मतलब है मार्जिनल, एम का क्या मतलब है, मार्जिनल, राइट। अभी फॉर्मूले की डेरिवेशन पे भी आता हूं, 2 मिनट दीजिएगा। पहले ये जो समझा रहा हूं नेक्स्ट वो समझ लीजिए। किसी भी कर्व का स्लोप कहलाता है मार्जिनल। क्या कहलाता है, मार्जिनल। उस कर्व का डेरिवेटिव करेंगे आप, ये बात समझ में आ रही है, उस कर्व का डेरिवेटिव करेंगे आप, प्लीज रिप्लाई कीजिए, यस समझ में आ रहा है या नहीं। It is always one or two students that reply only। चलिए, दैट मीन अगर मैं लिख रहा हूं फाइंड पेज नंबर 99 पे देखिएगा, पेज 99 कुछ लिखा हुआ है आपके पास। फाइंड को छोड़ते हैं, पहले पहले एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको पूरा करते हैं। प्रूव दैट, प्रूव दैट स्लोप ऑफ AC is equals to 1 by x MC minus AC। इंस्टीट्यूट अगर मेरे को कहीं परमिशन देगा ना ये पेपर बनाने की, तो ये क्वेश्चन मैं तो डालूंगा ही डालूंगा। और मैं ऐसे नहीं डालूंगा, मैं ये डालूंगा, प्रूव दैट स्लोप ऑफ को कैसे लिखते हैं, m, एम ए सी इज इक्वल्स टू एम सी माइनस ए सी, और x को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। मैं ये पूछूंगा, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे ये लिखता क्या है। एमसी का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट, एसी का मतलब है एवरेज कॉस्ट, एमएसी का मतलब क्या है अभी अभी समझाया ऊपर। पहले एसी निकलेगा, फिर उसका मार्जिनल निकलेगा। इसका मतलब क्या है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मतलब 1 यूनिट एक्स की 1 यूनिट इंक्रीज हुई, तो एवरेज कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ये चेक करना कहलाता है एमएसी। बात समझ में आई? तो मैं इसके प्रूफ पे चलूं, बात समझ में आई, प्रूफ पे चलूंगा। टाइम खत्म हो चुका है, परमिशन ग्रांटेड है, स्टूडेंट छोड़ के जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं? शॉर्ट रुकिंग, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो व्हाट इज माय AC? AC is C divided by X, AC is C divided by X, राइट। आ गया ना N by D। क्वेश्चन रूल अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करूंगा, तो DAC by DX is nothing else but the derivative of C by X का डेरिवेटिव। तो ये इसको लिखूं MAC, और ये क्या था, आपको अभी अभी ऊपर बताया था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डी स्क्वायर, डी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर,
माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ लिख दूं मैं फॉर्मूला, डी स्क्वायर डी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एन माइनस एन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी। तो एम ए सी इज इक्वल टू एक्स एम सी, इसको मैं एम सी लिख सकता हूँ, माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सेटिस्फाइड? कैन आई मूव अहेड? एम ए सी इज इक्वल टू एक्स एम सी बाय एक्स स्क्वायर। माइनस सी, तो मैं वन बाय एक्स कॉमन ले रहा हूं, एक्स एम सी माइनस सी बाय एक्स एम ए सी। एम ए सी वन बाय एक्स एक्स एम सी बाय एक्स माइनस सी बाय एक्स। सी बाय एक्स क्या होता है? सी बाय एक्स क्या होता है? ए सी। ये प्रूव करना था, हो गया प्रूव। हेंस दैट मीन व्हाट इज एम? बताइए एम को क्या लिखते हैं? स्लोप ऑफ क्या? ए सी, वन बाय एक्स मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। पेज 99 की डेरिवेशन है, देख लीजिएगा। मेरे को तो इंस्टीट्यूट का ये मॉड्यूल बड़ा अच्छा लगा, दिल जीत लिया मेरा। Despite I am CMA, I am MA in economics as well. I am MCOM as well. And इतना कुछ मैंने पढ़ा, लेकिन जब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल देखता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई, इसने स्टडी मेट को पढ़ लिया, आधे से ज्यादा ज्ञान आ ही जाएगा कहीं। ध्यान से पढ़ने की देर है बस, ये नहीं कि हवाबाजी में पढ़ लिया, पढ़ लिया देख लिया। वन इज देखना, वन इज पढ़ना, तो पढ़ना जरूरी है। अच्छा, एक पेज नंबर 100 पे जाइएगा। एज माई टाइम लिमिट इज फिनिश्ड, पेज नंबर 100 पे एक लिखा हुआ है, ED is equals to AR divided by AR minus MR। इसकी मैंने डेरिवेशन ऑलरेडी दे रखी है, डेरिवेशन ऑलरेडी गिवन, याद है सबको? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम आगे। ट्राई टू डू नेक्स्ट जो भी पार्ट हमारा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अप इन क्लास। ऑल टेक केयर। किसी को कोई डाउट या प्रॉब्लम हो बिफोर वाइंडिंग अप, यू कैन आस्क। Any one of you face some doubt or problems? Okay, no query. Thank you very much for coming up. Good night from my side. Take care.